Hello my dear students, I Fazia Pidwai welcome you all to Balajee online classes. Today I'll be explaining chapter number 18, that is pollution of air and water. Now, the first thing that we will be discussing is the pollution. What do you understand by pollution? Now, what happens? The addition of some unwanted substance, right, into the air, water or soil is what it is said to be contaminated, right? Whenever any unwanted substance gets added up with the soil, with the air and with the water, then that is the thing which gets contaminated, and this contamination of air, water and soil is what we call the pollution. Means pollution basically involves the mixing of the unwanted substance to a pure substance, right? This is something which is pollution. Now, we have different types of pollutions, right? And in this chapter, basically, we are going to study the two major types of pollution, that is the air pollution and the water pollution. First one is the air pollution. Now, air pollution is basically when the air that we breathe in gets contaminated, right, by the agents of smoke, dust and other harmful gases. Now, what happens? The presence of these agents actually makes the air unfit for us to breathe in, right? And this is where the pollution of air starts, right? जो भी एजेंट्स होते हैं, जो भी हार्मफुल चीजें होती हैं, जब एयर में मिक्स हो जाती हैं तो वो एयर हमारी सांस लेने के प्राय लायक नहीं रहती, और जब हम सांस नहीं ले पाते हैं, जब हमारी एयर जो है वो ब्रीथेबल नहीं है, तो क्या होता है? उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये एयर जो है एयर पॉल्यूशन है, मींस एयर जो है वो पॉल्यूट हो गई है, right? So basically the process by which the unwanted substance that gets added up into the air and which can cause the harm to all the living beings, which will actually takes that air in, is called as air pollution. Then we have some of the sources of air pollution. Now, first of all, the first source is the smoke of burning fuel, which actually released by the cars, scooters and other vehicles, right? Day by day we are seeing that the number of vehicles is getting increased in our roads. This is something which is a bit problematic. Why? Because the smoke that comes out from these vehicles, that's actually creating a lot of pollution in our air. So basically, we also have some of the poisonous gases such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide. They are also released from the factories, which is also causing the pollution of the air. Then we have burning of fossil fuels such as petrol, diesel, causes the emission of gases like carbon dioxide and sulfur dioxide, and also emits the unburnt carbon, which is a major pollutant. Then we also have chlorofluorocarbons, that is the CFCs which are used in refrigerators and air conditioners, and these are actually depleting the ozone layer which protects us from the ultraviolet rays of the sun. Then we have the smoking by people. Usually हम देखते हैं लोग जो है सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, स्मोक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो उस स्मोक से भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी एयर को हमारे पॉल्यूट कर रही है. जो हमारी एयर है ना, वो एक बैलेंस्ड फॉर्म है, उसमें जो भी गैसेस का जो प्रपोर्शन है दैट इज वेरी बैलेंस्ड, राइट? अब हम अपनी एक्टिविटीज से, अपने इंटरफेरेंस से उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं. जो गैसेस का जो प्रपोर्शन होना चाहिए वो प्रपोर्शन डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? हमारी एयर जो है वो अनफिट हो रही है कि हम उसे ब्रीथ इन नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, बेसिकली लंग डिजीजेस हो रही हैं, जो हमारे डेथ रेट को भी इंक्रीज कर रही हैं. देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. नाउ, एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो फर्स्ट इज समथिंग विच इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now, what do you understand by greenhouse effect? What happens in greenhouse effect? The carbon dioxide from the atmosphere absorbs the solar radiations emitted out from the surface of plants and heat up the atmosphere of the earth. What happens? It is due to this increased greenhouse effect that the average temperature has increased up to 1 degree Celsius, which is quite alarming. Greenhouse effect जो absorption है heat का, जो अर्थ हमारा जो absorb कर रहा है heat, वो excess amount में absorb कर रहा है, right? और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो temperature है अर्थ का वो increase कर रहा है 1 degree Celsius से, जो
क्वाइट अलार्मिंग है, मीन्स जो एक वार्निंग साइन है, राइट। तो बेसिकली अगर जो ये टेम्परेचर है अर्थ का इसी तरह से इसी रेट पे ऐसे इंक्रीज होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं, जो हमारे आइसबर्ग्स हैं, वो मेल्ट होने लगेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा जो एक बैलेंस्ड है जो हमारे नेचर में वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। Then we have the second cause, that is the acid rain. Now acid rain is also a result of the air pollution. So basically nitrogen dioxide released from the automobiles, sulfur dioxide released by the burning of fossil fuels mixed with the falling rainwater and results into the formation of nitric acid and sulfuric acid that causes the acid rain, right? और ये जो acid rain है ये हमारे soil में जाता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे सॉइल को भी हार्म पहुंचाता है और उसके साथ साथ जो वाटर बॉडीज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी इससे हार्म होते हैं, राइट। देन वी हैव द थर्ड effect, that is the depletion of ozone layer, which we have discussed right now. Now ozone is what? Ozone layer is basically a blanket on earth which saves us from the ultraviolet rays of the sun, right? But अब क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो एक्सेस अमाउंट में यूज होने की वजह से ये जो एयर है, जो ये हमारी एयर को पल्यूट कर रहा है और जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। वो क्या हो रही है, धीरे धीरे वो आपकी घट रही है, छट रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो हमारे अर्थ सरफेस पे एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्किन बर्न होता है। एक स्कॉचिंग सी हीट नहीं लगती है अब सन की, है ना, प्लेजेंट सी नहीं लगती। तो क्यों लग रही है वो स्कॉचिंग सी हीट को, इसीलिए लग रही है क्योंकि जो हार्मफुल रेसेस है वो भी हमारे अर्थ के सरफेस पे एंटर कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए क्या हो रहा है, आपको सनबर्न हो रहा है, यूजुअली स्किन कैंसर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसी का एक रिजल्ट है। देन वी हैव the effect in plants and other living beings. Now acid rain, what it does, it basically spoils the foliage and causes reduction in the growth of many parts of the plants, and in some cases it also kills the plants. कुछ ऐसी स्पीशीज है प्लांट्स की जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो किल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। Then we have deposition of particular matter, that is dust or can be cement, it can be carbon, soot, etc. जो क्या करता है, जो लीव्स पे जाके सेटल हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का है, जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स का, वो क्या होता है, वो रुक जाता है। Then pollution also causes decoloration of the leaves in many parts of the plants and also shows inhibited growth of many parts of the plant. Then air pollution can also cause number of diseases, basically the respiratory diseases, like जो lung diseases होती हैं, such as lung cancer, allergy, coughing, chest pain, bronchitis। ये सारी ऐसी diseases हैं जो हमारे human beings में पाई जा रही हैं आजकल air pollution की वजह से। Then carbon monoxide, which is released by the incomplete combustion of carbon fuels, easily gets bonded with the hemoglobin. जो hemoglobin जो हमारे खून में पाया जाता है उसके साथ easily mix हो जाती है, ठीक है। जब हम breathe करते हैं तो हमारी उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो जाकर हमारे ब्लड से मिल रहा है, ठीक है। और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, राइट। तो हमारी पूरी बॉडी में वो इम्प्योर ब्लड जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, हमें नॉसिया सा फील हो रहा है, हमें डिजीनेस हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन का जो एक लाइफ साइकिल का जो स्पैन है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है, राइट। देन वी हैव द other pollution, that is the water pollution. Now water pollution means the addition of any such unwanted substance to the water which deprives it or makes it unfit for the drinking, right? That is what water pollution is, right? और वाटर पोल्यूशन दो टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट कंटामिनेशन होता है जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, आपकी जो भी वेस्ट होता है फैक्ट्रीज से, रिफाइनरीज से, ठीक है, वो आके वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है। और इनडायरेक्ट हमारा ये होता है जिसमें जो बेसिकली इंक्लूड करता है पॉल्यूशन विच इज रीचिंग द सॉइल और थ्रू रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर जो भी अंदर जा रहा है ग्राउंड वाटर में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। हमारा सॉइल जो है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो भी इम्प्योर हो रहा है, राइट। तो दिस इज द इनडायरेक्ट कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। देन वी हैव द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, discharge of chemical waste by industries, right? Discharge of poorly treated or untreated sewage,
Then surface runoff containing pesticides or fertilizers or detergents or spilled petroleum products, etc. Then surface runoff from construction sites and farms. Also the leakage of underground storage tank. All these things are basically the sources of the water pollution. Then we have the effect of water pollution. अब वाटर एक ऐसी चीज है जो सारे लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी है, ठीक है, विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्वाइव। तो अगर आपका वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपके सारे लिविंग बींग्स पर इफेक्ट डालेगा, राइट। तो पोल्यूटेड वाटर जो है वो बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकता है, सच एज कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, स्किन डिजीजेस एक्सेट्रा। और जो कंटामिनेशन है वाटर का, रिवर का, जिस हैवी मेटल से, जैसे कि आपकी मर्करी है, आपका कॉपर है, आपका निकेल है, ये सब ऐड हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमको नहीं बल्कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारे जो भी जीव जंतु जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं, उनको बहुत बड़ा हार्म पहुंचा रहा है। Then residual fertilizers on being washed away into the water bodies encourage the growth of the weeds on the surface of the water body। और इस वीड की वजह से क्या होता है, ये वीड जो है जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो वाटर से वो रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो ये लॉस होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का फ्रॉम वाटर इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज यूरोटोफिकेशन। तो हमारे जो रेसिडुअल फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारे जो यूट्रोफिकेशन का रेट है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेथड्स हम अडॉप्ट करें जिससे क्या हो, वाटर पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। So first is that garbage should not be thrown into lakes and other water bodies. Also more trees should be planted. Then the toxic industrial waste should be treated properly. Then the city sewage should be treated as the sewage treatment plant before being discharged into the water body. Also excessive use of fertilizers should be avoided. Then use of synthetic detergents should be minimized. Also जो एक्टिविटीज हैं लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग शुड नॉट टेक्स प्लेस नियर द सोर्स ऑफ द वाटर। जो पानी के साइड अक्सर आप देखते हो, जो भी आपके ब्रिजेस के साइड या लेक्स के साइड लोग क्या करते हैं, कोई भी उल्टी सीधी एक्टिविटी सच एज कपड़े धुल रहे हैं या इस टाइप की एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को रोकना चाहिए। देन वेल्स शुड बी कवर्ड, और जो भी कुएं बने हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। देन वी हैव गंगा एक्शन प्लान। Now, the government of India launched a program called as Ganga Action Plan in 1986 to reduce the pollution level in the water, right? So this gap, ये जो gap था Ganga Action Plan था, इसका aim था, क्या aim था, at interception and diversion of waste water reaching the Ganga and installation of sewage treatment plant for its treatment। और ये जो प्लान था बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था, इज ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन द पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट टू कीप द गंगा क्लीन। जो लोगों के बीच लोगों को जागरूक करना और उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें लाना कि वो भी पार्टिसिपेट करें कि किस तरह से हम गंगा को क्लीन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम लोग नहीं चाहेंगे, अगर हमारा जो पब्लिक है वो नहीं चाहेगी कुछ भी सही रखना, कुछ भी क्योर करना, कुछ भी कहीं भी पॉल्यूशन ना हो, कहीं भी आप वेस्ट ना थ्रो ऑफ करें, तो ये अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करता है, हम पे करता है। नहीं, गवर्नमेंट जो है वो हर टाइम, गवर्नमेंट कैन नॉट वॉच अस, राइट। सो ये चीज हमारी अपनी ड्यूटी है कि हम किस तरह से अपनी वाटर बॉडीज को, अपनी एयर को, अपने सॉइल को पोल्यूशन फ्री रखें। देन वी हैव द टॉपिक पोर्टेबल वाटर। नाउ पोर्टेबल वाटर क्या होता है, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज सेड टू बी पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, right, and it should be free from all kinds of germs and harmful gases, right। Then water should be treated properly before consuming it। जब वाटर पीने से पहले अच्छे से वाटर को देख लेना चाहिए। और आजकल इसीलिए we have at our homes also we use filters, ठीक है, एक्वागार्ड है, कैन टारो है, ये सब क्यों फिल्टर्स यूज किए जा रहे हैं वाटर को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए। फिर एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरिनेशन विच इज कॉमनली यूज्ड। इट्स अ केमिकल मेथड फॉर मेकिंग द वाटर जर्म्स फ्री। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम वाटर में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिससे क्या होता है जो जर्म्स होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं, राइट।
So with this topic, your chapter has been ended, class. Now it is your responsibility to read this chapter properly. Also, you have to learn all the difficult terms along with their meanings and spellings. You can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.